Good evening, ma'am, and to your entire team on the budget. Sapna here from CNBC TV 18. Ma'am, two quick questions. Uh, uh, you had indicated that contact intensive sectors may require further support. So apart from the ECLGS in which you have carved out a separate window for the hospitality sector, for instance, that's one. One minute. I'm not sure if your voice is coming out audibly. I'll Even repeat. with your mask, if you want, you speak loud a bit. Sure, ma'am. Ma'am, just to repeat, so you had indicated at some point in time that probably the contact-intensive sectors may require further support. So, one is the ECLGS, which you've announced in your budget speech, also a separate carve-out for the hospitality sector, for instance, within that. Anything else, ma'am, that you would like to elaborate on that front? And second, ma'am, aren't your tax and expenditure, both numbers, extremely conservative in the budget? Any reason for that, ma'am? First thing about hospitality and contact intensive. I've said hospitality and related sectors. This was one thing which has come out repeatedly from very many stakeholders, and we recognize that post the second wave, the hospitality is in difficulty and they needed support. The tested and sort of proven formula was the Emergency Credit Liquidity Guarantee Scheme. Since that had worked out well for the MSMEs, we thought that formulation is the best to be adopted. So to the existing 4.5 lakh crores of sovereign guarantee, we added 50,000 crore more sovereign guarantee and wanted the hospitality and contact intensive sectors to benefit out of it. So that is the scheme. As it is, many of them are still approaching their banks. Banks can, even without the ECGLS, help them out if they want. But if ECGLS has to be extended, yes, we have given provision of 50,000 crores for it. Well, I thought you commented about the 1st February 2021 budget as well, saying you were conservative. I think our assessments have proven right, and conservative is not being overtly and excessively optimistic. We are sure to achieve the numbers. If anything, we'll probably better them. Number 5. Good afternoon, Madam Finance Minister. This is Karishma here from Business Today TV, India Today Group. I'd first like to congratulate you and the team for successfully implementing yet another budget. Ma'am, my question is on the privatization reform. The disinvestment target has been slashed. The revised target is at 70,000 crore, and of course, the next year's estimate is at 65,000 crore. Ma'am, with this, I'd like to understand how are we looking at LIC, IPO, and BPCL privatization, which have been on cards? I have Tuhin with me here, but before he gives you details, one thing is got to be understood. LIC, we've already sort of told you that in all probability it is going through this year. I've made a specific mention of that in the budget. So beyond what I've said in the parliament, there's nothing more to add for me on that. But I've indicated clearly that it will happen. Now, assessment for the rest of the year about the number being big or small as per your view, I'll have Tuhin get into the details. But we have shown the intent of the government in that Air India got cleared. NINL has found its buyer. There's a little bit more work to be done there, but you are saying that we are progressing in many of these. So I think we've been very realistic in telling what we'll do and achieving what we've told. Tuhin, you want to add anything more onto this? Ma'am, I just want to add that disinvestment actually is in accounting terms, when actual receipts to the government. Now, when we, for example, do NINL, nothing comes to the government in accounting terms. But that doesn't mean that we are actually progressing towards privatization in a faster way.
So emphasis is on completion of transactions and implementation. And if we keep too high a target, sometimes it also distorts the market, because nothing stops us from achieving when we want to achieve in disinvestment as per the plan which we are there. So ma'am has also mentioned that the ongoing transactions will be carried on and they will be completed. And this transactions, as and when they mature, they come to that. And secondly, on the revised estimates being 78, we should not also conjecture what will be the size of LIC IPO based on that, because valuation is yet to reach the final conclusion based on which we will do that. And there have been instances of actual receipts being different from even the RE figures, so you should not read too much into it. Okay, 122. Hi ma'am, Meghna Mittal from Newsrise. The budget has remained completely silent on India's listing on the foreign indices. There was an expectation that a tax amendment might happen to enable that. Has that been put on hold, or what is the plan on that? Just repeat your question. I think your voice was a bit muffled. Ma'am, I'm Meghna Mittal from Newsrise. My question is that the budget has remained silent on India's listing on the foreign indices. The expectation was of a tax amendment to enable that. So has that plan been put on hold, or what is the update on that? You're referring to the bond indices, Yes, right? yes. The issue is that the NR to NR transactions are anyway tax-free. So there's no capital gains. The issue was between NR and resident. So the BEPS discussions are on for us. And in those discussions, we are actually saying that the capital gains tax right should come to the country where the transactions emanate from. So that has been our stand. And those discussions are still on, and we are the one who's propounding that thing, and that's how it is moving, those discussions. So this was not the right time for us to take a decision in a manner where we give up on our own domestic thing while we keep fighting in the BEPS discussions. So that was the basic reason that we didn't want to do it this year. Number 90. Ma'am, firstly, congratulations. Just two quick clarifications. One is on cryptocurrency, because you did touch about the RBI now giving digital rupee, and it will start from next year. And you've reflected that in the finance bill. You've also taxed cryptocurrency, but there's no regulation. So how are you going to work on that? I'm a little bit keen to understand that. And the other issue, of course, is that in your speech, which was very well put, there was one key issue which affects all of us, including you, inflation. How are you going to deal with that? First thing, Sunil, I said the Reserve Bank will be issuing a digital currency. Currency becomes a currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. But anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued. And that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals. And in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS, if I can use that expression. There will be a transaction, TDS imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world
are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. We have circulated a paper, inputs are coming in, public stakeholders are also talking about it, so regulation goes through that process. I don't wait till regulation comes into place for taxing people who are earning profits, can I? Well, every budget doesn't speak explicitly about inflation and its impact, but of course, if you're talking of numbers, money, credit, liquidity, and also supply and demand of essential goods and others, you keep in mind inflation. Okay. 11. मैम, मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। बहुत सारी चर्चा इस बात को लेकर चल रही हैं कि जिस तरह से इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से, तो इस बार इनकम टैक्स को बढ़ाने का टैक्स को कम नहीं किया गया, कॉर्पोरेट को के टैक्स को कम किया गया। बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया मैंने। लेकिन ऐसा मैम ऐसा क्या हुआ कि टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं मिली? आम जनता जो पब्लिक खासतौर पे सैलरीड क्लास है उसको बहुत उम्मीदें थी इस बार बजट से। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूं। लास्ट ईयर भी, इस साल भी, एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। 1 to 4. Hello. Good evening, ma'am. Shishir. Yes, Shishir. Ma'am, there is one particular announcement which you made about the blended and non-blended petrol and diesel, that additional or the differential 2 rupees thing. Does this mean that all the petrol and diesel sold by petrol pump, except those who are not blended, from October 1, 2022 will be costlier? We certainly want to encourage blended fuel. That's a simple message in that. Anything else you want to add, Tarun? We have discussed with the Ministry of Petroleum. We have also collected data on what is not being blended, and this is something to push the petroleum companies to ensure that they do the blending. So our desire is not to collect this tax because it will be very minimal, but the desire is that the blending happens, and to that extent it benefits the country. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि बजट पेश करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसे संबोधित करते हुए बहुत सारे सवाल होते हैं, और खासकर जो ये सवाल अधिकतर उठ रहे थे वो डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, इन सारी चीजों को लेकर, और जिन चीजों को, जिन प्रावधानों के बारे में नहीं कहा गया है आज, और इसके साथ ही वो इनकम टैक्स जिस पर निर्मला सीतारमण ने सीधे तौर पर कह दिया कि बढ़ाया नहीं कम से कम पिछले 2 सालों में, तो इस बात की खुशी होनी चाहिए। बहरहाल हम चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय यहाँ पर ये जो आज तक में हम बजट बाजार लेकर आते हैं, जो हम सीधे मॉल में आपको लेकर आए हैं, और अब से ठीक पहले हम अलग अलग दुकानों पर जाकर और पूरी तस्वीरें आपको दिखाकर ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से खुशी, कितना गम, लेकिन अब हम जरा इंडस्ट्री का भी रुख लेंगे और साथ में राजनीति का भी रुख भांपने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजेश शर्मा जी हैं, और साथ में सीपीआई की ओर से दिनेश वार्ष्णेय जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। राकेश भारती मित्तल जो कि वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारती एंटरप्राइजेज के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय श्रीराम, पूर्व अध्यक्ष सीआईआई और चेयरमैन डीसीएम श्रीराम के। डॉक्टर नरेश त्रेहन जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेदांता द मेडिसिटी। बहुत स्वागत है आप सबका। सर, पहले मैं इंडस्ट्री का ही रुख लेती हूं, उसके बाद राजनीति को भापेंगे। राकेश मित्तल जी, ये समझाइए कि लोग कह रहे हैं, अधिकतर लोग कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी एक्साइट करने वाला नहीं है, पर क्या आप इस बजट के प्रावधानों को सुनकर वो खुशी महसूस कर रहे हैं
या फिर बहुत नॉर्मल या उदासीनता? देखिए, मेरा मानना है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में कई नए इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं जो सस्टेनेबल हैं, लॉन्ग टर्म हैं और पाथ ब्रेकिंग हैं। अगर मैं बात करूं डिजिटल करेंसी की, तो डिजिटल रुपी का अनाउंसमेंट किया गया जो अगले साल से लागू होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको इशू करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये मैं समझता हूं कि ये डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन पेमेंट की तरफ एक और कदम बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ जहां 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग कोर स्ट्रक्चर में जोड़ने की बात की गई है, ये भी एक डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन पेमेंट की तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिकॉज इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। इसमें जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं हैं वो अपने बैंक अकाउंट ऑन मोबाइल डिवाइसेस, हैंडल डिवाइसेस पे रख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो सकती हैं, ट्रांसपेरेंसी होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। और इसके साथ साथ जो बैंक्स हैं उनका जो नेटवर्क है वो बढ़ेगा, क्योंकि हर जगह जाके फिजिकल ब्रांचेस जो है वो खोली नहीं जा सकती। 2-3 सेक्टर जो स्ट्रगल कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी, उसमें बहुत ही बड़ा 5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, क्योंकि पिछले 2 साल में ये सेक्टर जो है इसको काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं एग्रीकल्चर में, तो 2 बहुत अहम कदम जो हैं आज अनाउंस किए गए हैं। एक है डिजिटल यूनिवर्सिटी जो लॉन्च करने की बात की गई है। इससे ना सिर्फ नई यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आएंगी, पर जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो भी डिजिटल ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को जो है वो दे सकते हैं। फैकल्टी दुनिया भर में कहीं से भी इसको लेक्चर्स को डिलीवर कर सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, खास तौर पे जो स्कूल्स में, गांव में बच्चे हैं, रूरल हिंटरलैंड में बच्चे हैं जिनके पास स्मार्ट डिवाइसेस नहीं है, हमने पिछले 2 साल में देखा कि उनका एजुकेशन का काफी इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज वो उनको डिलीवरी नहीं किया जा सका, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। तो जो 1 क्लास 1 टीवी चैनल का अनाउंसमेंट हुआ है आज, इससे जो 12 टेलीविजन एजुकेशन के हैं वो 12 से बढ़ के 200 हो जाएंगे। तो हर जो प्रदेश, जो स्टेट गवर्नमेंट है, रीजनल एजुकेशन के माध्यम से अपने स्टेट के बच्चों को एजुकेशन डिलीवर कर सकते हैं। टेलीविजन आज लगभग हर घर में है और इससे मेरा मानना है कि बच्चों में जो है सेल्फ लर्निंग का एक जो है उसका ये इम्प्रूवमेंट होगा। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, किसान ड्रोन्स की बात की गई है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक अच्छा बढ़िया कदम उठाया गया टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए। इससे ना सिर्फ क्रॉप का असेसमेंट किया जा सकता है, बल्कि लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन करने में मदद मिलेगा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे करने में मदद मिलेगा। और जहां फोकस पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया एग्रीकल्चर में, मेरा ये मानना है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है एग्री सेक्टर के अंदर। ऑयल सीड, पल्सेज और हॉर्टिकल्चर की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। इससे ना सिर्फ जो हमारे क्रॉप्स है, फ्रेश क्रॉप्स जिसमें डैमेज होती हैं, उसमें जो वेस्टेजेस होती हैं वो रिड्यूस होंगी। और लास्ट में मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2-3 बहुत अहम कदम उठाए गए हैं, जहां जो कंपनीज हैं वो वॉलंटरी एग्जिट कर सकती हैं, वाइंड अप हो सकती हैं। पहले जो 2 साल का समय था वो अब 6 महीने के अंदर किया जाएगा। प्रोसेसेस सिंप्लीफाई किए जा रहे हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग अफेयर था, जहां आर्बिट्रेशन होती थी, उसके बाद कोर्ट्स में जाते थे। आज वित्त मंत्री जी ने ये बताया कि 75% जो पेमेंट है वो टाइम बाउंड मैनर में रिलीज किया जाएगा, जिससे कंपनीज को एक राहत मिलेगी, उनको पेमेंट्स टाइम पे मिलेंगी, और दूसरी तरफ जो उनको बैंक का इंटरेस्ट लगता था जो डिलेड पेमेंट्स के ऊपर, उनकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। और जो श्योरिटी बॉन्ड्स की बात की गई है, बैंक गारंटी की जगह दिए जा सकते हैं। ये भी एक सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इसमें भी जो है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट होगी। और जो इनकम टैक्स जो रिटर्न्स हैं उसमें जो अपील डिपार्टमेंट करता है, जो सेम इशू, सेम मुद्दे में अगर कोई केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो आज ये बात की गई है कि उनको डेफर किया जाए जब तक जजमेंट नहीं आ जाए।
तो रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और लीगल कॉस्ट जो हैं और लिटिगेशन जो है वो कम होगी। और मेरा ये मानना है कि जहां पर PLI के टेलीकॉम सेक्टर में अनाउंस किया गया फॉर 5G इकोसिस्टम को बनाने के लिए, सोलर के लिए लगभग 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया अंडर PLI स्कीम। ये फर्दर एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करेंगी और मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा। जी, अजय श्रीराम जी, कई चीजों का जिक्र किया है अभी राकेश जी ने, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जैसी चीजें कितना बदलाव लाएंगी, और क्या ये सारे गोल्स इतने लॉन्ग टर्म हैं कि आज की तारीख में जो सामान्य वर्ग है, जो आम वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसे ये नहीं दिख रहा है कि कुछ एक्साइटिंग है? क्या बहुत लॉन्ग टर्म है ये जो गोल्स हैं? हाय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। नहीं, मेरे ख्याल से जो बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बात करी है वो पहले जो पॉलिसी चलती थी उसकी कंटिन्यूएशन है और वो पॉजिटिव है। आप पिछले साल का अगर आप देखें, GDP ग्रोथ भी देखें या टैक्स रेवेन्यू देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, आप एग्रीकल्चर ग्रोथ देखिए 3.9% हुआ है। मेरे ख्याल से कंटिन्यूएशन है उसी पॉलिसी का, और गवर्नमेंट तो अब और एक्स्ट्रा करना चाह रही है। जो उन्होंने जो बात करी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में, उसमें एग्रीकल्चर के बारे में इतनी बात करी है, डिजिटल इस्तेमाल करेंगे, ड्रोन्स को इस्तेमाल करेंगे, ऑयल सीड्स को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, मिलेट को बढ़ावा देना चाहते हैं, काश्तकार के लिए मैकेनाइजेशन पे और फोकस करना चाहते हैं। मतलब बहुत सारी एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट तो और आगे ले जाना चाहती है, और मेरे ख्याल से ये सब हो सकता है अभी भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग शुगर इंडस्ट्री में हैं, हमारे करीब 2 लाख काश्तकार हैं जो हमें गन्ना देते हैं। पिछले कुछ सालों में हम गन्ना फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा एंथुजियास्टिकली काम करते हैं, कोई कम करते हैं। लगभग 1 हेक्टेयर गन्ना से करीब 1 हेक्टेयर लैंड से लगभग 70 टन गन्ना मिलता है। लेकिन हमारे पास काश्तकार हैं जो 150 टन गन्ना निकाल रहे हैं 1 हेक्टेयर से। वो सब चेंज की वजह से हो रहा है, वो सब फॉरवर्ड थिंकिंग की वजह से हो रहा है। तो जब तक ये सब नहीं होगा प्रोग्रेस होगी नहीं। तो मेरे ख्याल से तो ये प्रोग्रेस होना जरूरी है, फॉरवर्ड थिंकिंग जरूरी है। और जो इस बार मैं एक चीज जरूर और कहूंगा, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़ कहा है, वो इसी के लिए है कि भारत में 7 लाख गांव हैं, वहां पे सड़क कैसे पहुंचे, पानी कैसे पहुंचे, बिजली कैसे पहुंचे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, वैसे सबका फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से बजट तो पॉजिटिव है और फॉरवर्ड लुकिंग है। लेकिन मौजूदा तौर पर जो लोग अगर कोई राहत चाह रहे थे, जैसे अजय सिंह जी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर स्पाइसजेट एंड वाइस प्रेसिडेंट एसोचैम। स्वागत है अजय जी आपका। ये समझाइए कि जो पूरा टूरिज्म सेक्टर था, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ये सब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुए पिछले 2 सालों में। कोविड में जैसे ही पहला प्रतिबंध लगता है वो सीधे तौर पर पर्यटन को, सफर को, इन सब को प्रभावित करता था। उम्मीदें तो थी, पर क्या उसे लॉन्ग टर्म में भी एड्रेस किया गया है? देखिए, जब इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है, जिस प्रकार से जो स्पीकर्स मुझसे पहले कह रहे थे, जब आप 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, अगर स्टेट्स को आप पैसा जोड़ें तो 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लोगों को ज्यादा पैसे उनके जेब में जाते हैं, तो फिर वो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, और उस सब से एविएशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सबका फायदा होता है। जैसे आप जानते हैं 50,000 करोड़ का ECLGS स्कीम में भी इजाफा किया गया है, वो भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए है। लेकिन ये बात सही है कि जो एविएशन का क्षेत्र है और जो टूरिज्म का क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, और उसमें जिस प्रकार से मदद की आवश्यकता है, शायद वो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में नहीं दी गई। लॉन्ग टर्म में जरूर जो कदम उठाए गए हैं उससे लाभ होगा। लेकिन जिस प्रकार से पेट्रोल पे जो ऑलरेडी $90 पे पेट्रोल है, उस पे जो टैक्स जो लगाया जा रहा है, एक्साइज ड्यूटी है जो वैट स्टेट्स लगाती है, और उस सब से बहुत ज्यादा नुकसान सेक्टर का हो रहा है, और पर्यटन वैसे ही बहुत कम है कोविड की वजह से। तो इस सब में तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कई स्टेट्स ने वैट को कम किया है सिविल एविएशन मंत्रालय के प्रभाव से, लेकिन अभी और बहुत काम करने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहां बहुत
जॉब्स जहां पर रहते हैं, बहुत लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो इसमें हम जरूर इस बजट अनाउंसमेंट के बाद भी वित्त मंत्रालय से बात करेंगे कि कुछ राहत जरूर दी जाए। डॉक्टर त्रेहन, स्वास्थ्य का क्षेत्र भी एक ऐसा ही क्षेत्र रहा। हालांकि कोविड के बाद से हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, बदलाव देखे, कोशिशें देखी, लेकिन क्या बजट से जो उम्मीद रही वो आज कुछ हद तक आपको आगे पूरी होती दिख रही है? इसका बैलेंस मैं आपको बताता हूं कि एक तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका जो बजट है वो 16% बढ़ाया गया, पर वो 16% उसको 88,000 करोड़ तक ले गया। पर ये एक कदम तो है उस तरफ जो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को 2.5% ऑफ जीडीपी की जरूरत है अगर जो हमें यूनिवर्सल हेल्थ पहुंचानी है अपने सिटीजन्स को, तो उसकी तरफ ये छोटा स्टेप है और उम्मीद ये थी कि वो थोड़ा बड़ा स्टेप होगा। दूसरा ये है कि जो 3 सेंसिटिव चीजें करी गई हैं बजट में अनाउंस करी गई हैं, एक तो स्किलिंग के ऊपर है कि वो देश पोर्टल बनेगा जिससे स्किलिंग की सुविधाएं मिलेंगी लोगों को। दूसरा जो है वो हेल्थ स्टैक जो है जिससे वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के ऊपर भी काम चल रहा है कि उसकी पोर्टेबिलिटी हो। और तीसरा ये है कि मेंटल हेल्थ जो पोर्टल बना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पिछले 2 सालों में कोविड के तहत लोगों को बहुत सारा मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ है। क्या उनकी जॉब चली गई, या फाइनेंशियल बर्डन है, या किसी की डेथ हो गई, या वो बिल्कुल कूप्ड अप हैं 2 साल अपने कमरों में। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेस रहा है लोगों के ऊपर। उसके लिए जो ये मेंटल पोर्टल है ये काम आएगा, जरूर आएगा, और ये अच्छा काम किया। पर जो नहीं एड्रेस हुआ वो यही था कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना है, क्योंकि ये पैंडेमिक्स जैसे हमारे हॉस्पिटल थे, मेदांता या हमारे जैसे हॉस्पिटल जो हैं, उन्होंने काफी लाइव्स को बचाया, और उसको करने के लिए ऐसे हॉस्पिटल्स की जरूरत है, तो इनको ज्यादा और मजबूत करना है और टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी ले जाना है। तो उसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो ये है कि उसको दिया जाए स्टेटस नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर, जिसके अंदर जो है फंडिंग है वो एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट मिल सकती है, जिससे काफी राहत मिलेगी, क्योंकि आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में जो बहुत डिस्ट्रेस में है, अपने लोन भी वापस नहीं कर सके। दूसरा ये है कि उसके तहत ये होता है कि हमारे को जो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट है जैसे जीएसटी का है, वो जीएसटी में थोड़े कंफ्यूजन है, जिसको हम वित्त मंत्री से बात कर रहे हैं कि जीएसटी हमारे ऊपर तो जीएसटी लग रहा है जो हम खरीदते हैं, पर हम पेशेंट को चार्ज नहीं करते। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट किया था कि पेशेंट के ऊपर बर्डन नहीं बढ़ना चाहिए, पर इसको न्यूट्रलिटी किसी तरह करनी है, उसके ऊपर काम हम अभी भी जारी रखेंगे, उनकी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। तो इसीलिए एक तो ये स्टेबल बजट है, और तरफों से ये काफी बोल्ड बजट है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंड होगा या और जो सपोर्ट मिली है लोगों को, पर हेल्थ केयर पे ज्यादा कोई ऐसा मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तो अब आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें एलोकेशन जो है वो एटलीस्ट 2.5 तक पहुंचानी है, और आने वाले साल में होगी या उसके बाद होगी, ये देखने की बात। तो इसीलिए जो अभी आज के दिन हुआ है वो तो मैंने आपको समराइज कर दिया। इन अ वे ये बहुत ह्यूमन था, जो चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हैं ये ह्यूमन टच था। दूसरा, फाइनेंशियली कोई ज्यादा प्रोग्रेस आगे नहीं हुई। राजेश शर्मा जी, सीधे तौर पर अगर हम कहें एक दूरगामी बजट जरूर, और इसमें देखिए जब वित्त मंत्री सामने आई तो उन्होंने भारत के 75 साल और आने वाले 75 के बाद जो 25 साल होंगे उसका जिक्र कर दिया। महाभारत को कोट करते हुए उन्होंने राजधर्म की बात बोल दी, मिडिल क्लास को नमस्ते कर दिया, कहा कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत अच्छे से अपने टैक्स को भरते हैं। सिर्फ शुक्रिया मिलेगा, 2 साल हो गए। नहीं, कोई शुक्रिया वाली बात नहीं है। मिडिल क्लास को और मिडिल क्लास के परिवारों को सब कुछ दिया गया है इस बजट में। आज अगर आपको एक टेम्पररी छूट मिल जाए थोड़ी सी टैक्स की, और आपके बच्चे को नौकरी ना मिले, अच्छा रास्ता ना मिले, अच्छी गाड़ी, अच्छा रेल ना मिले,
तो वो दूरगामी नहीं है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है, ये पॉलिटिकल बजट नहीं है, ये विजनरी बजट है जो देश को आगे बढ़ाएगा, देश को आगे लेके जाएगा। 25,000 किलोमीटर रोड, अनबिलीवेबल। 400 वंदे भारत ट्रेन पूरे देश को जोड़ने के लिए खड़ी करी जा रही है। 40 लाख घर, हर बेघर को घर देने का जो सपना है उसे पूरा कर रहा है। आज आप सोच सकते हैं कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को आप जोड़ दे रहे हैं बैंक से, तो हर शहर में, छोटे छोटे शहर में, कस्बे कस्बे में बैंक की ब्रांच उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पहुंच रही है। उसके साथ में ही ग्रीन बॉन्ड ला रहे हैं कि आप आगे की जनरेशन को अच्छी हवा दे पाए। आप उसके साथ में डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर पूरे इंडिया में बिछा रहे हैं। आप डिफेंस को, मैन्युफैक्चरिंग हब को इंडिया में लेकर के आ रहे हैं कि 68% हम इंडिया की डिफेंस कर देंगे, जो हम सारा का सारा इंपोर्ट किया करते थे। तो अगर आप ऐसा देखें तो इंसेंटिव स्टार्टअप को दे दिया, 1 साल और बढ़ा दिया, मैन्युफैक्चरिंग को दे दिया, बढ़ा दिया। 60 लाख जॉब क्रिएशन। फार्मर चाहता है कि मेरे बच्चे को नौकरी मिले, मेरे बच्चे को आज यहाँ पे फाइबर रहे, यहाँ पे उसको नेटवर्क प्रॉब्लम ना रहे, वो अच्छी पढ़ाई कर पाए, उसके स्कूल में अच्छी सुविधा रहे, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, कॉलेजेस बने, ये सारी चीजों की जरूरत है। आज कोई ये नहीं चाहता कि मुझे छोटा सा कोई टेम्पररी 1 साल की राहत मिल गई, उस राहत को नहीं चाहता। हर कोई चाहता मेरे और मेरे परिवार के भविष्य को अच्छा करा जाए, जो इस बजट से हो रहा है। ये पॉलिटिकल बजट नहीं है। लोग कह रहे थे इलेक्शन के टाइम सिर्फ पॉलिटिकल बजट आएगा, जो नहीं हुआ। आज आपको बताऊं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर को हमने बहुत अच्छा किया, और PLI सोलर मॉड्यूल में जो हम दिए हैं, जिसके चलते कि आज सोलर बहुत तरीके से बढ़ेगा। तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं है, जिस तरह चाइना ने आज से 10 साल पहले अपने आप को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करा के किया, वही चीज आज भारत ने करी है, और बहुत ही अच्छा और फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। कहते हैं कि आंकड़ों का जो आकलन होता है वो बहुत स्पष्ट होता है, वो ब्लैक या व्हाइट ही हो सकता है, लेकिन इसे भी देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। इसे देखने का जो इंडस्ट्री का नजरिया था वो हमने आपको सुनाया कि क्या सोच रहे हैं सब इसको लेकर, लेकिन राजनीति का नजरिया क्या हो सकता है। दिनेश भाषणी जी, चुनाव से ठीक पहले ये बजट आ रहा था, 5 राज्यों के चुनाव हैं। विपक्ष ने बहुत सारी आशंकाएं जताई और कहा कि ये बड़ा पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, सब उम्मीद कर रहे थे, कागज कलम लेकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई चुनावी घोषणा हुई नहीं। आपको दूरगामी लग रहा है ये बजट या नहीं लग रहा है? श्वेता जी, मेरा तो ये मानना है, हमारा ये मानना है कि ये बजट चुप्पियों का खजाना है। चुप्पियों का? चुप्पियों का खजाना है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो खत्म। अब कहते हैं 6 लाख नौकरियां देंगे, 60 लाख नौकरियां देंगे, वो फिर खजाना निकलेगा। फिलहाल मैं उस पर ना जाके एक बार बता देना चाहता हूं कि ये पहली बार है इस देश में आजादी के बाद कि देश को बजट में सूचना के अभाव में रखा गया है। सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं, और बजट को 25 साला बना दिया गया, सालाना की बजाय। आर्थिक सर्वेक्षण कुछ कहता है, बजट कुछ कहता है। किसान, मजदूर, नौकरी पेशा को नकार दिया गया। नरेगा का बजट बताता है कि गरीबी में पहले ही अब मर रहे हैं 80 करोड़ लोग, उनको और मारा जाएगा। शिक्षा का बजट बता रहा है शिक्षा का निजीकरण की ओर ले जा रहा है। 142 सुपर रिच को फिर बख्श दिया गया। पुरानी पेंशन में कहा गया जी 14% जमा करा दो। अरे आप निश्चित पेंशन दीजिए, सबको सुनिश्चित कीजिए पुरानी पेंशन, और वो नहीं देना चाहते, वो वाजपेयी सरकार ने ही खत्म की थी। इतना ही नहीं, जो मान्यवर ने कहा कि 25,000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, रेलवे का विकास करेंगे, वो है PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP मॉडल पूरे विश्व में अर्थशास्त्री पूंजीवादी औजार मानते हैं उसको। उसमें जनता दायित्व, पूंजीपति का मुनाफा। जनता के स्रोतों पे पूंजीपतियों का कब्जा होता है। क्रिप्टो क्रांति, ट्रेडिंग आएगी इससे, ये ट्रेडर्स को फायदा, आम जनता का इससे लेना देना कोई नहीं। इतना ही नहीं, इस बजट में जो आपने अभी बोला था 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन, जो फिक्की के वो बोल रहे थे, ये फेडरल करेक्टर पे अटैक होगा, फंगिया ढांचे पे। ये पूंजीपतियां जमीन कब्जा करने का चक्कर है। ये सरकार पहले ही फेडरल करेक्टर पे अटैक करती है, चाहे GST शेयर देने की बात हो, चाहे टैक्सेस का शेयर देने की बात हो, चाहे NIA की रेड हो, चाहे ED की रेड हो, चाहे CBI की रेड हो, पहले ही फेडरल करेक्टर पे अटैक है। ये भी वही होगा। इतना ही मैं आपको और बता देता हूँ, 80 लाख आवास देने की बात करते हैं। इन्होंने जो पहले वायदे किए थे उतने दे दिए। अगर इन्होंने दे दिए तो मैं आज इनसे मांग करता हूं कि उतने घरों में कितनी ईंटें लगती है उसका परचेज ऑर्डर दिखाइए। उतने घरों में कितना सीमेंट लगता है उसका परचेज ऑर्डर दिखाइए। उतने घरों में कितना सरिया लगता है उसका परचेज ऑर्डर दिखाइए। है ही नहीं इनके पास। इन्होंने देश कंगाल कर दिया, अर्थव्यवस्था बैठा रखी है। 5G देंगे। अरे आप 5G दोगे, आपने सारे मोबाइल चार्जेस के दाम बढ़ा दिए।
गरीब आदमी की रोटी खाना मुश्किल हो रखा है। श्वेता जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आरबीआई डिजिटल रुपया देगा, वो डिजिटल रुपया तो अच्छी बात है, आप लाइए, उससे हमारा जो प्रिंटिंग में खर्चा होता है वो होता है, पर क्या वो डिजिटाइजेशन एक रिक्शा वाला, एक मजदूर, एक गरीब, 55 करोड़ लोग नौकरियों से बाहर हैं, उनका क्या करेगा? मैं ये जानना चाहता हूं। ये पूरी तरह से बजट चुप्पियों का खजाना है, सूचनाओं का अभाव है और पूंजीपतियों को लड्डू देके गरीब जनता की जेबों को खाली करने का खजाना है। चलिए, इन आरोपों के हम जवाब लेंगे, लेकिन किरण मजूमदार शॉ जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बायोकॉन लिमिटेड की, वो भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी है। किरण जी, ये समझाइए कि क्या सचमुच में आपके हिसाब से भी ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जैसी चीजें हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतर होंगी, या वाकई हमारे संघीय ढांचे पर एक तरह से एक प्रहार है, खतरा है देश के लिए? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि ये बजट ने डिजिटल इकोनॉमी के लिए काफी उन्होंने प्लानिंग किया है, जैसे कि digital ease of doing business, digital architecture for better governance, healthcare, education वगैरह वगैरह। लेकिन आप तो सुन रहे हैं कि आम आदमी को बहुत महसूस हो रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है और उनके लिए ये बजट ने कुछ नहीं किया है। तो वाइल्स्ट ये हमारे फॉर्मल सेक्टर के लिए बहुत ही ये बजट अच्छा दिख रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए महसूस हो रहा है कि उनके लिए कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि दैट इज द सेक्टर दैट हैज रियली बीन इम्पैक्टेड ये पैंडेमिक से, और उनको ही बहुत ही जॉब लॉसेस और ले ऑफ्स की वो स्थिति में है वो लोग, और वो समझते हैं कि उनके लिए महंगाई बढ़ती जा रही है और उनके लिए कोई भी ये बजट से फायदा नहीं मिलेगा। तो उसीलिए आई थिंक गवर्नमेंट को ये परसेप्शन करेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि इस कोविड की पैंडेमिक में मैं समझती हूँ कि सबको आउट ऑफ पॉकेट खर्च बहुत बढ़ गई है, और उसके लिए एटलीस्ट कुछ टैक्स एग्जेम्पशन दे सकती है गवर्नमेंट, या दूसरे किस्म में हाउसिंग लोन्स के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है आम आदमी के लिए, ये सब क्षेत्र में गवर्नमेंट कुछ करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी, इफ यू लुक एट द बजट होलिस्टिकली, तो देश के लिए अच्छा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग ओर में हम लोग बढ़ सकते हैं। और हमारे क्षेत्र में जो हेल्थ केयर आप अगर देख रहे हैं तो उनमें भी बहुत ही एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर शुरू हो जाए जल्द से जल्द तो शायद कुछ जॉब्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अगर आप ज्यादा खर्च करेंगे तो वो भी टाइम लगता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए। तो लोगों को अभी जॉब्स चाहिए और अभी कुछ बेनिफिट्स चाहिए, और अगर वो नहीं मिलेंगे तो आम आदमी बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाएंगे। राजेश शर्मा जी, दूरगामी चीजें अच्छी होती हैं, लॉन्ग टर्म अच्छा होता है, लेकिन जो जिक्र हम कर रहे हैं और जो आशंकाएं उठ रही हैं वो ये भी उठ रहा है कि जिन लोगों को आज ही चाहिए, जो नौजवान आज ही रोजगार ढूंढ रहे हैं, अगर 1.25 करोड़ बेरोजगार हैं और 60 लाख नौकरियों का वादा किया जाता है, तो ये तो वादे और असलियत में ही वहीं पर गैप दिख जा रहा है। वहां पे गैप देखिए, आज कोई भी चीज है, 2 साल पेंडेमिक जो हम न भूतो न भविष्यतो, ऐसी पेंडेमिक को झेल के पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन, फ्री अनाज, फ्री पानी, फ्री घर, फ्री बिजली, फ्री बिजली, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप तो क्या बात कर रहे हैं, आप सीपीआई वाले हो सर, सीपीआई वालों ने देश में जहां रूल किया उस स्टेट को बर्बाद कर दिया, पूंजीपति बोल करके सबको माइनस में जारी दी जा रही थी, आपने 2 करोड़ नौकरियां दे दी,
आपने शिक्षा दे दी, हमने टॉयलेट दिए, हमने पानी दिया, हमने स्वास्थ्य दिया, हमने शिक्षा दी, हमने सड़क दिया, हमने स्वच्छता दी, ईंटों की गिनती की जगह आप लोगों की गिनती कर लीजिए ना। 1 मिनट आप उनसे बात सुन लीजिए। फ्रेगाइल 5 से लेकर के ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। पेंडेमिक के बाद भी ये इन लोगों को आग लगती है। हमने कह रहे, IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, वर्ल्ड बैंक IMF तो ये बात नहीं कह रहा जिसके आप एजेंट नहीं, पर ये एजेंट, ये IMF की एजेंट वाली बात कहाँ से है? मैं बता देता हूँ जी। दूसरा मैं बता दूसरा IMF की एजेंट वाली बात भी समझिए। 1 मिनट खत्म होने दीजिए। वर्ल्ड बैंक में जितना भी पैसा होता है, इट हैज ए कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन। आप चेक कर लीजिए, वो पूंजीवादी और निजीकरण की ओर जाने को कहता है। एक स्कीम बता दीजिए वर्ल्ड बैंक के लोन की जो कहता हो कि इसको सरकारी क्षेत्र में लगवाइए। अरे सर, आपको अमेरिका की करा दी और वो मुनाफा होता है, और मुनाफा और घोर मुनाफे की ओर ले जाता है, जनता को वो मारता है। आप देख लीजिए वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी, सेम IMF की देख लीजिए। मैं ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं कह रहा, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ब्राजील में क्या हालत हुई थी जब 240। चलिए, हमारे साथ इस समय राजीव कुमार जी, हमारे साथ इस समय राजीव कुमार जो कि वाइस चेयरमैन नीति आयोग के हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस बार के बजट में एक दूरगामी योजना जरूर नजर आती है, लेकिन एक शिकायत साथ में सुनाई दे जाती है कि जिसे आज राहत चाहिए वो क्या करे। ये जरूर दिखाई दे जाता है कि हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी जब कहा जाता है तो समझ नहीं आता कि इन दोनों में किस तरीके से हम फर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम चाहेंगे कि आपसे बातचीत करके हम ये चीजें हम एक एक करके समझें। सर जी जरूर श्वेता जी, नमस्कार। और आप बताइए कि सबसे पहले तो मुझे निवेदन ये करना है कि ये बजट जो है वो दूरगामी तो है ही है, मगर एक ऐसे भारत के निर्माण की एस्पिरेशन करता है, कैसे भारत की निर्माण की कल्पना करता है जो कि दुनिया में सबसे अग्रगणीय हो, और उसमें उस दुनिया में हमारे जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हो उसको इस्तेमाल करते हुए हमारे जितने निजी लोग हैं, जितने आम लोग हैं, उनको सशक्त करके, सक्षम करके, पढ़ा के, उनका शिक्षा को बेहतर करके और उनके स्किल्स को बेहतर करके उनको भी उसमें उनका रोज़गार उसमें जनरेट कर सके और उनको फ़ायदा पहुंचा सके। तो इसमें सिर्फ और दूसरी चीज़ ये कहना है कि दूरगामी होने के नाते जो साथ साथ ये जो अभी फ़ौरन हमारे जो सामने चैलेंजेस उठ के आए हैं, उभर के आए हैं इस पेंडेमिक के होते, जो मतलब एक 100 साल में से भी ज़्यादा बड़ी एक पेंडेमिक जो हमारी हुई है, उसमें जो हमारे चैलेंजेस निकल के आए उनको भी उनको भी अपने ध्यान में रखता है इस बजट में, क्योंकि उसी की वजह से ये हुआ है कि जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात हुई है, जिसमें कि होटल हैं, ढाबे हैं, टूरिज्म है, रेस्टोरेंट हैं, उसमें जो उनको मार पड़ी है और उसके लिए उनको 50,000 करोड़ जो है वो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन, क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम के अंदर तहत उनको दिया गया और कहा गया कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। उसी को देखते हुए जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है कि 12 से लेके 250 चैनल हो जाएंगी जिनसे कि बच्चों को पढ़ाने में मदद मिल सके। और उसी को नज़र रखते हुए ही आपने देखा था कि कैसे पिछले साल जो है वो खाद्यान्न की पूर्ति कराई गई। तो ये बजट जो है वो एक संतुलित बजट है, ये ना तो सिर्फ दूरगामी है, ना सिर्फ जो है वो ये कहा जाए कि एक पॉपुलिस्ट बजट है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ सराहनीय है इसमें, वो ये है कि सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अरे भाई ये तो चुनाव के बीच में बजट आया है तो इसका इस्तेमाल चुनाव में बढ़ाने के लिए होगा। बिल्कुल अलग अपने देश की जो हमारे राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट हैं, जो राष्ट्रीय हमारे जो कर्तव्य हैं, उनको पूरा करने के लिए बजट बनाया गया है। और मेरे ख्याल में इसलिए मुझे तो लगता ये है कि इसको आने वाले दिनों में इसको कई बार हम लोग इसकी तरफ देखेंगे कि इसने एक ऐसी नींव डाली है जिससे कि हम सही रास्ते पर अपने देश को आगे बढ़ा सकें। क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये इतने सालों तक ये असमंजस रहा कि क्या इसमें लीगैलिटी है या नहीं, लेकिन उस लीगैलिटी को बताने से पहले अगर हम उस पर टैक्स लगा देते हैं तो क्या ये ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट भी हो जाता है कि हाँ ये लीगल है? हाँ, हो ही जाता है। आप उसी चीज़ पे टैक्स लगा सकते हैं जो कि मतलब आप समझते हैं कि चलेगी या चल रही है,
और साथ में जो बड़ी चीज़ ये है कि टैक्स इस दर पे लगाया गया है कि इससे लोगों को ये भी कहा गया है कि भाई सावधानी बरतिए, इसमें ये ना समझिए कि बिल्कुल जो है वो एक विंडफॉल गेन हो जाएगा और जो बस में पैसा नाप शनाप लगाइए। तो एक तो ये अच्छी चीज़ की गई। दूसरा ये कि जो 1% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया है उससे ये होगा कि पूरी की पूरी हमें सूची मिल जाएगी कि कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और ये इस बात का द्योतक है कि सरकार अब एक अच्छी रेगुलेटरी स्कीम इसके लिए लाएगी, जिससे कि जिसको कहते हैं कि सारे एक्सचेंजेस और ऑन रैंप ऑफ रैंप वगैरह जो सारे ट्रांजैक्शन है वो उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मगर ये भी बात समझ में आ गई कि एक ये नई उभरती हुई एसेट क्लास है और एक ऐसी चीज़ है जिसको कि कहते हैं ना वो कांट पुट द जेनी बैक इनटू द बॉटल, तो वो रुक भी नहीं सकती थी। तो इसके लिए ये सरकार इस बात को समझती है कि इसको हमको टैकल करना पड़ेगा, और ये जो यथार्थ सामने है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाए हैं। आरबीआई की डिजिटल करेंसी क्या इस तरफ एक संकेत है कि आने वाले दिनों में हम पेपर की जगह हम सब कुछ बस डिजिटल ही देख सकते हैं? क्या इसमें लोग संकेत भी देखें? अगर ये संकेत नहीं है तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी से अलग है और कितनी अलग है? ये क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है, और ये जैसे कि सिंगापुर में इसका चलन शुरू हो गया है और बाकी मुल्कों में भी अभी एक स्टडी आई थी कि कोई 26 देशों में इस पर जो है वो काम हो रहा है। और वो ये है कि हम रफ्तार धीरे धीरे जो है वो सारे ही देश जो है वो डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। और इसमें यह है जो हमें रिजर्व करेंसी के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ता है, जिसको सीनियरेज कहते हैं, जो डॉलर जैसे जो रिजर्व करेंसी उसका देश कमाता है, वो बहुत कम हो जाएगा। और इससे अगर हम लोग, क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंट है सॉफ्टवेयर का, और अगर हम इसको ठीक से अगर हम बनाएंगे और आगे चलाएंगे तो इससे ये हो जाएगा कि हम लोग डिजिटल रुपी का जो इस्तेमाल होगा उससे हम लोग जो ये पेपर करेंसी है उससे हटकर डिजिटल में आ जाएंगे। तो उससे एक जो ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। कहीं और दुनिया भर में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें भी हमें काफ़ी सहूलियत होगी। मगर बिल्कुल फ़र्क है क्रिप्टो करेंसी से ये डिजिटल करेंसी, और एक समय पे आगे जाके कहीं पर इनमें कुछ समन्वय होगा तो वो आगे की बात है, वो देखा जाएगा। राजीव जी, आलोचना के एक और विषय खड़ा हो जाता है कि सवाल उठ रहे हैं कि पिछली बार कहा गया कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, इस बार और ज्यादा सड़कों पर हमने युवाओं को देखा रोजगार की चिंता में, और अब 60 लाख का वादा किया जा रहा है। तो ये पिछली बार से हम आउटलुक को थोड़ा सा नीचे होता हुआ सरकार के लक्ष्य को देख रहे हैं, या फिर हम ये समझ रहे हैं कि ये अतिरिक्त है, और अगर अतिरिक्त भी है तो ये कुल मिलाकर मिलेंगे कब लोगों को? देखिए, ये जो 60 लाख रोजगारों की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, नौकरियों की बात है, वो तो जो 14 सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनी है उनसे आने वाली एडिशनल एम्प्लॉयमेंट है, और एडिशनल रोजगार होंगे। तो ये बात है, और ये जो है वो इस बात पे मुनस्सर है, इस बात पे निर्भर है कि वो इन 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम कैसे कैसे आगे बढ़ती है। इसका रिस्पांस इतना अच्छा हुआ है कि आज उन्होंने 19,000 करोड़ एडिशनल दिए हैं सोलर पावर के लिए, क्योंकि उसमें बिड्स इतनी अच्छी आई, और बाकी सब क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा रिस्पांस प्राइवेट सेक्टर से आया। तो मुझे यकीन है कि अगले 3-4 साल में ये नौकरियां और इससे ज़्यादा शायद इसमें जो है वो ज़रूर बनेंगी। मगर जो बाकी रोज़गार की बात है उसमें देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा होता है तो उसका बहुत बड़ा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में रोज़गार बनता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतर हो जाता है तो उससे हमारी कंपनीज की कॉस्ट कम हो जाती हैं, लागत कम हो जाती है, जिससे कि वो अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं, वो अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उसमें रोज़गार बढ़ता है। उसके बाद जो फिर हमारी जो इससे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने से जो हमारी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स बनती हैं, उससे एक सीमलेस फैसिलिटी आती है, उससे भी रोज़गार बढ़ता है। तो दोनों सप्लाई साइड
और डिमांड साइड, क्योंकि जब उसमें रोजगार बढ़ते हैं तो जाहिर है कि उससे कंजम्पशन बढ़ता है, फिर उससे भी एक वर्चुअल साइकिल जो शुरू होती है, उससे रोजगार बढ़ाने में हमें बहुत मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। मगर बात यही है कि रोजगार बढ़ने से ही हम लोगों को जो हमारी इक्विटी की बात है, इक्विटेबल की बात है, उससे हमें उसमें कुछ सहायता मिल पाएगी। सिर्फ जैसा कहा जाता है, और फिर दूसरी चीज़ आपने इस बजट में देखा होगा कि शिक्षा क्षेत्र का जो एलोकेशन है, अनुदान है, वो 1 लाख करोड़ से अब ज़्यादा कर दिया गया है। तो उससे भी हम लोगों को जो है वो रोज़गार के काबिल बनाने में हम लोगों को मदद मिलेगा। तो इस बजट का तो एक मेरे ख्याल में एक अच्छा लक्ष्य, एक अच्छा फोकस रोज़गार पे रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब एक बार हमारा निजी निवेश बढ़ जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा कि हमारी सरकार जो है वो निजी निवेश को बढ़ाने से ही जो है वो उस पर ही मतलब निर्भर है कि जब वो बढ़ेगा तभी एक वर्चुअल साइकिल शुरू होगी। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो तो सिर्फ उसका एक सहायक है। तो वो अगर हो जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि रोजगार हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए।